Good evening. You're watching the news on Mirror Now. I'm Amita Balachandra. Let's take a look at the top headlines. Women brutalized in Bihar. 14-year-old girl gang raped, mutilated and thrown out of a moving train. College girl raped and set ablaze in her own house. ये एक्सीडेंट नहीं है तो क्या है? ये हादसा नहीं है तो क्या है? Mirror Now questions the Bihar government's apathy after 2 minor girls were brutalized in Bihar, but the JDU government calls these cases mere accident. राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है. After that very crucial parliamentary meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, BJP fields Bihar Governor Ramnath Kovind as their presidential candidate. Did disgraced former UP Minister Gayatri Prajapati pay off senior judges to the tune of 10 crore rupees to get bail from a POCSO court in a rape case? And Allahabad HC Chief Justice orders inquiry, finds evidence of corruption. Darjeeling on a boil, GJM unrest enters day 8 as protesters burn effigies of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, blaming her for all the trouble in the hills. And it is a Mirror Now impact. PMC takes note of Mirror Now's coverage on pending road repair work, slaps penalty of 30 lakh rupees on contractors who have failed to complete road repair work. One of the major stormwater drains in South Delhi is back in focus as Delhi High Court raps the government for its failure to desilt the Kushak Nala, resulting in massive water logging. Straight up to our top story, we're tracking at this hour in Patna. Minor was allegedly gang raped, mutilated and thrown out of a moving train. And in another case, just 200 kilometers from Lakhisarai, a minor was abducted, raped and set ablaze. 2 rape shockers from the city. Lawlessness remains to be Bihar's biggest problem now. In the first case, a 14-year-old girl was allegedly gang raped by 6 minors in Bihar. The victim was profusely bleeding when she was found unconscious at Kul railway station. She was grievously injured with 5 pelvic bones fractured. However, when taken to the hospital, instead of being provided with proper treatment, she was left unattended on the floor for almost 14 hours. स्टेशन पर मिला, उठा करके प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ डाले, खून चल रहा था, गाड़ी से फेंका गया, बदमाश गाड़ी से फेंक दिया था. वो लड़की जैसे क्यूल स्टेशन पर, हम दूसरा स्टेशन पर थे, वो क्यूल स्टेशन पर थे. क्यूल भी हमारा आदमी आल था, मोटरसाइकिल भेजे थे. इसमें बरामद हुआ. नहीं बरामद होता कैसे नहीं कि अगर हम लोग नहीं जागरूक होते तो लड़की को लेकर बाहर भाग जाता. घर के बगल लगे था सर. घर के बगल पे हुआ क्या हुआ था? उठा के ले गए थे, क्या हुआ था बताइए. उठा के ले गया सर, क्या क्या किया हम नहीं जानते हैं सर. रेल में फेंक दिया गया सर. अच्छा, कब की घटना है ये? 12 बजे रात की. क्या पुलिस पकड़ पाई उन लोगों को? हाँ सर, एक पकड़ा गया. एक पकड़ा गया? हाँ सर. और मतलब वो लोगों को आप पहचानते हैं जो ऐसा घटना को अंजाम दिया? 2 लोग को पहचानते हैं सर. 2 लोगों को पहचानते. कंप्लेन किया आपने थाना में? हाँ सर, चनन थाना. क्या बोला थाना वाला? कहा सर ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे. एक बार मुझे लड़का बता रहा है कि हम लोग छोड़ने जा रहे थे, तो लड़की से हम लोग, लड़का बोला था हम पहुंचा देंगे, तो आपके साथ हम लोग एक संबंध बनाने देंगे. लड़की से एक संबंध बात आ रही है, सामयिक बात आ रहा है, हम अनुसंधान कर रहे हैं, किसी कन्फर्म नहीं आ रही है बात. जो लड़का साथ में था उसके साथ संबंधित से एक बार संबंध बनाने की बात आ रही है, और उसके साथ एवज में वो उसके के पास पहुँचा दिया था उसको. और हम लोग जाँच कर रहे हैं, वैज्ञानिक जन का अनुसंधान किया जा रहा है. लड़की के कपड़ा को हमने जब्त कर लिया है, इससे फिर जाँच के लिए भेजा जा रहा है. जो भी है बहुत घृणित काम है, ऐसा बात है, बहुत घृणित काम है वो. और ये हम लोग स्पीड ट्रायल चला रहे हैं, तो जल्द से जल्द से आज लाने की कोशिश करेंगे, और अभी को भी हम लोग गिरफ्तारी में लगे हुए हैं.
Another shocker as lawlessness becomes evident in Bihar. Once again in Kagaria, a college girl was allegedly raped and set on fire in her own house. In a dying statement, allegedly, the minor has named her boyfriend. The accused has been arrested. बताई कि मेरा भवानी शंकर कुमार पिता अभ्यस मंडल से पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हम मुझसे शादी करने के लिए बोले। कल दिनांक 17 को भवानी कुमार हमको घर पर बुलाया 11 बजे रात में, या हम तुमसे शादी कर लेंगे। जब हम उसके घर पर गए तो मेरे साथ बलात्कार किया। हमको अकेले देखकर भवानी शंकर कुमार बाथरूम जो शौचालय था उसमें बंद कर दिया और किरासन तेल छींटकर आग लगा दिया। आग लगाने के बाद हल्ला हुआ तो वहाँ से हमको सब लेकर के सदर हॉस्पिटल इलाज के लिए आए। पूरी तरह से मनीषा जल चुकी है। Now, while Bihar's daughters are brutalized, the ruling party engages in political squabbling with the opposition. What's more shocking is that the JDU calls rape an accident. Yes, that's what you heard. JDU leader Ghulam Rasool called these cases accidents and claimed the media was unnecessarily hyping this. लॉ एंड ऑर्डर का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है जो क्रिएट लोग करना चाह रहे हैं, जो लोग शो करना चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है। ये एक एक्सीडेंट है, जिस एक्सीडेंट को हम लोग एक्सीडेंट के तौर पर नहीं बल्कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री की जो पहचान है गुड गवर्नेंस की, उसको चुनौती के तौर पर लेते हैं। अब जो भी एक्यूज्ड हैं वो बचने वाले नहीं। ये एक्सीडेंट नहीं है तो क्या है, ये हादसा नहीं है तो क्या है। रामराज के नाम पर जनता को धोखा देने वाले विकास, न्याय, अधिकार, यही यूपी में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, और आप खुलेआम बलात्कार हो जा रहा है। विपक्ष के लोगों को मार्च करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार और अपराध और काले धन का बिहार में जिस अरे बाप रे बाप, जो हमारे पास स्ट्रेंथ चाहिए पुलिस प्रशासन के लिए वो हमारे पास केंद्र सरकार ने हमको सहयोग नहीं किया है। करा लीजिए, तो हमारे पास बालू भारतीय जनता पार्टी बताएगी। पूरे देश का सबसे गरीब राज्य बिहार माना जाता है। एक बार नहीं अनेकों बार केंद्र सरकार से दुहाई की गई, गिलगिलाया तक गया साहब, अपना बिहार का अधिकार तक लोग नहीं दिए। जो हादसा हुआ है, जिस रेप की चर्चा आपने की है, इस रेप की से ही संज्ञान में बात आई, वैसे ही सरकार ने इसको जिस प्रकार से बिहार को गरीब के रूप में लिया है। 25 वर्षों तक किसका शासन रहा? लालू जी से लेके आप तक का शासन रहा, तो बिहार की गरीबी का कारण क्या है? या तो कांग्रेस है या नहीं तो आप लोग हैं। नहीं आप ऐसा आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे अन्याय हो रहा, और उस पर आप बीच में आप थे कि नहीं सत्ता में 8 साल तक? सत्ता में हम थे, सत्ता में 8 साल तक थे कि नहीं थे? मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश कुमार मलाई मार रहे थे, तो नीतीश कुमार बहुत बढ़िया थे। जो भी विकास 7 वर्ष में हुआ, नहीं सत्ता में मलाई मार रहे थे तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बहुत अच्छा थे। देख लीजिए। Extremely shocking statement coming in from the JDU there. Let's also listen in to some reactions. ये तो हीनियस क्राइम है और हीनियस क्राइम का मुकाबला तो करना ही पड़ता है। उसमें जो भी जरूरी कार्रवाई है सब हो रही है, सारी कार्रवाई हो रही है। पूरा पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर अलर्ट है, लेकिन ये तो एक क्राइम का इंसिडेंट है, हीनियस क्राइम, और उसकी पूरी तहकीकात SIT भी कर रहा है और वो पूरी जांच हो रही है। और जब मीडिया में ये खबर आ गई तो ये तो बिल्कुल ही हाईली रिपोर्टेड केस है, तो इसको तो पुलिस के अपने मापदंड के मुताबिक भी उसके हर पहलू की जानकारी होगी, और हम लोगों के स्तर से भी इसके बारे में काफ़ी जानकारी ली जा रही है। तो अब तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। एक की गिरफ्तारी हुई है, दूसरे की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। सारा उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन से लेकर सब कुछ
जो किया जाना चाहिए किया जा रहा है, उसको लेकर पूरी दबिश है। शुरू में अगर कुछ लोगों के मन में ऐसा और कोई इसका कारण रहा होगा, लेकिन यहाँ से सख्त रूप से कहा गया है कि ये इसको बहुत ही गहराई से और हर पहलू की जांच कीजिए और जो भी कल्प्रिट है उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिहार की हालत बहुत खराब है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अपराधियों को मन से डर नाम की चीज नहीं है। सरकार का जो धमक होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए लड़कियों के साथ रेप, लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ बलात्कार, चाहे वो क्यूल की घटना हो या बिहार में अन्य, आए दिन इस तरह की घटना का अंजाम दिया जा रहा है। मगर अपराधी बेखौफ अपराध करके उसको लगता ही नहीं है कि उसको कुछ होने वाला है। बहुत दुर्गति हो रही है बिहार में भी इसी तरह की घटनाएं आई हैं, जो महिलाओं को, बालिकाओं को जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं, उनको निर्वस्त्र करने की घटनाएं, ये एक सामान्य बात होती जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम देश की आधी आबादी को क्या सम्मान देते हैं, क्या आदर देते हैं, क्या अधिकार देते हैं, और इस पर मैं समझता हूं कि अपनी सोच बदलनी होगी और जो भी उनको अधिकार दिलाने की, महिलाओं का अधिकार दिलाने की जो मुहिम है उसको भी बहुत तेज करना पड़ेगी। आम बात हो गई है कि चाहे वो ट्रेन हो या कोई भी जगह हो, इस तरह की घटनाएं बहुत आम होती जा रही है। इस पे मैं समझती हूँ वहाँ की सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सीआरपीएफ जो ट्रेन में जो तैनात रहती है पुलिस, वो उस वक्त कहाँ थी? बाकी के जो यात्री थे वो कहाँ थे कि एक छोटी सी बच्ची के गैंग रेप करके और उसको ट्रेन से फेंक देना? इसका मतलब ये कि हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएं, लड़कियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, ये गांव की व्यक्तिगत वैमनस्यता है। पड़ोसी का नाम है, घर के बगल के पड़ोसी का नाम है। अब ये व्यक्तिगत वैमनस्यता है, किस आधार पर ये हुआ है, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई किया। यही सरकार का गवर्नेंस होता है कि अगर कोई आरोप लगा तो उसमें कोई बचाव करने वाला नहीं। इमीडिएट एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो उसके मेडिकल की प्रक्रिया हुई है, वो चल रही है। और साथ ही साथ 30 घंटे के बाद, चिंता की बात है हमारे परिजनों के लिए, 30 घंटा के बाद पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया इस पर। मैं तो कहूँगा शर्मिंदगी है इन चीजों पे। और वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री जी बहुत सख्ती करे हुए हैं, लेकिन अगर बिहार के ऐसे मामले आए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी से अनुरोध करूंगा कि और सख्ती करें और जो लोगों ने ये सब किए हैं उनके ऊपर गंभीर से गंभीर धारा लगा के उनको जल्दी सजा दिलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह की घटना तो सबसे पहले अमानवीय है और हम सभी लोग चाहते हैं कि आज के डेट में ऐसी कोई भी घटना पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे किसी भी जगह पर हो। और जो अमर्यादित और कहीं न कहीं मानसिक दिवालियेपन का ये नमूना है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन प्रशासन या चाहे जिस भी तंत्र हो, कहीं न कहीं और आम लोग दोनों को इसमें साथ आना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं आम लोग भी साथ में होंगे और कहीं न कहीं प्रशासन का भी चूक है कि कहीं न कहीं उसको भी देखना चाहिए था। तो ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं समाज के लिए तो चेतावनी है ही, साथ में प्रशासन के लिए भी जो बड़ी जिम्मेवारी है कि प्रशासन भी कम से कम हर जगह मुस्तैदी, चाहे ट्रेन हो चाहे इस तरह की घटना, तो हम लोग समझ नहीं सकते हैं कि आदमी का किस तरह का मानसिक दिवालियेपन। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। बहुत तकलीफ हो रही सोच सोच के एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ। कितना वहशी एटीट्यूड है, और वो भी यंग लड़कों का। और यही नहीं, उन लड़कों ने इसको गैंगरेप किया, इस बच्चे के फ्रैक्चर्स हैं बहुत सारे, फिर उसे फेंक दिया बाहर, और अस्पताल ने भी इसका ख्याल नहीं रखा शुरुआती दौर में। तो अब सोचिए, मतलब क्या इंसान कह सकता है इसको लेकर कि इतनी तकलीफ होती है कि ये वहशीपन अभी भी पनप रहा है हमारे देश में, और यंग लड़के ऐसा कर रहे हैं। ये सोचकर और अफसोस होता है कि हमारे ये जो
यंग बच्चे हैं, किस तरह की उनकी तरबियत और परवरिश है कि वो ऐसा कर रहे हैं अपनी क्लासमेट के साथ। तो बहुत ही सीरियसली इस खबर को लेने की जरूरत है और पूरी सहानुभूति उस बच्ची के साथ, उसके माँ बाप के साथ। लेकिन बहुत ज्यादा अफसोस कि इस वहशीपन पर, इस पागलपन पर, इस दरिंदगी पर, कि इस छोटी सी बच्ची को क्या कुछ गुजरना पड़ा। Two Nirbhayas in Bihar. There we also have Falguni Bansal, activist, joining us on the phone line. Falguni Bansal, tell us this. Now, a little earlier when we spoke to an MP of the JDU, he went on to say that these are just accidents. If a rape is an accident, then what is an accident? How can you even say that? These are no accidents. It's shocking. It's beyond anybody's comprehension. And how do you even fathom this thing? I don't know what people think and why people have to give away those mindless comments in the first place. I mean, just to be in the limelight, you're going to say anything that is, when things that are so insensitive? Come on, give us a break. I mean, look at those small kids. I mean, there's a little girl there, then I don't know how to even explain this. To put her on fire, and then you say these things are accidents. Absolutely, Falguni. Also tell us this now. Don't you think the government, the members of the party here, especially from the JDU, have to be more sensitive in terms of what they say and what they actually portray? Because here the JDU leader went on to say that these crime cases that we're seeing are just accidents. Also a comment on the fact that the number of cases have only been increasing. In both these cases there are multiple lapses. In the first case, the 14-year-old girl was left unattended for 14 hours. Yes, but you see, one had hoped that at least after Nirbhaya and the kind of rage the whole country had shown, things are going to improve and girls are going to feel more safe. But that's not the case. You know, girls are definitely not safer. You see more and more rape cases coming in. But the kind of apathy you see in handling the rape case is appalling, There is no education. There is absolutely no sensitivity. It's like it's not even handled like any VIP accident case, road accident case. It's not even handled with that kind of sensitivity. While there is a girl, her entire life is at stake. But more than that, I feel that when you see more and more such cases coming in and the kind of negligence you see everywhere, girls being left unattended, they're not being examined in time, and so the evidence is lost and stuff like that. It's not just the leaders who should be held accountable, but also the people who handle this entire thing. And, you know, because somewhere they become a party to the entire crime when they show this kind of negligence. And it is unacceptable. It is unacceptable. All right, Falguni, thank you so much for joining us here on Mirror Now with your views now on the urban debate tonight, in fact, at 8 p.m. as the Nirbhayas of Bihar fight for their lives. We ask, is the government taking the safety of its citizens too lightly? In other news now, former UP Minister Gayatri Prajapati allegedly paid a 10 crore rupee bribe for his bail. Now, the ex-Samajwadi Party minister, who was charged with raping a minor in February, was granted a bail by the additional district and sessions judge O.P. Mishra, who was posted as POCSO judge. Allegedly, the grant of bail was settled upon payment of 10 crore rupees, of which 5 crore rupees was shared among the 3 lawyers who acted as middlemen, and 5 crore rupees was paid to the new POCSO judge, O.P. Mishra. Now, the matter came to light after Allahabad High Court Chief Justice Dilip Bhosle sought an inquiry into his bail. The minister allegedly gang-raped a woman and attempted to rape her minor daughter. Full report has been sent us now
by Meenakshi. One thing that the Gayatri Prajapati case has done, that it has brought back into sharp focus the nefarious connection that exists between criminal politicians and some tainted members of the subordinate judiciary, especially in UP. Meanwhile, the Chief Justice's office has communicated that it has taken note of the gravity of these allegations and it is mulling the future course of action going forward as to how to deal with these two tainted judges. One thing is certain, the collegium intends to act to send out a very terse message that such conduct will not be tolerated. In New Delhi, Meenakshi Bhanja for Mirror Now. Earlier in the day, we also spoke to Meenakshi Ganguly. Listen in. You know, the experience is very different across the country. If you talk about Delhi, yes, you do see a perceptible change because you do see an increasing sensitivity. Apart from maybe one or two offhand cases, by and large, the appointments are much more done, much more judiciously made. But I would not say that of every district in the country, and you must understand there are 700 districts we're talking about. So whether it's happening across the country in the same manner, this case just tells you that it perhaps isn't, because then in Maharashtra we had a judgment in which a sessions judge actually made horrifying statements about the character of a girl in an incest case and almost said she asked for it. So that too is happening. So the experience is very disparate, but it is time that all of these we pull them all together. These experiences are pulled together to show exactly what kind of judges are required in the POCSO case. Also listen in to some political reactions coming in. अब किसने रुपए देख लिए, कहाँ से 10 करोड़ आ गया मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कोई जांच के आदेश दिए तो जांच हो जाएगी, जांच में चीजें सामने निकल के आ जाएंगी और जांच में जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और उसमें क्या कहा जा सकता है. His bail application, also the way the bail has been granted, has been well managed as reported in the media. And the Chief Justice himself, which is mentioned in the media, has taken note of it and initiated an inquiry. So 10 crores of rupees is a big sum for a postings to get a bail. So this is again a classic example how things have been manipulated, to an extent judiciary in Uttar Pradesh. And therefore, Gayatri Prajapati needs to be punished as per the law, and I'm sure with the current regime in power, the law will take its own course. जो उसमें घोटाले में और जो एक नाबालिग के बलात्कार में, तो बेल के लिए जिन परिस्थितियों में उनको बेल मिली वो असामान्य थी और जो हाईकोर्ट की जांच में जो स्पष्ट आया है कि 10 करोड़ रुपए उसमें लेन देन हुआ. हमारे न्यायपालिका की बड़ी ख्याति है और लोगों को भरोसा है, लेकिन इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो फिर विश्वास उठेगा. Also on the show nowadays, finally official BJP has decided to field Bihar Governor Ram Nath Kovind as their presidential candidate. The party's parliamentary board met today to finalize their nominee, and the meeting was chaired by Prime Minister Narendra Modi, and Kovind was reportedly chosen unanimously in the meeting. Let's give you a background of the presidential nominee. Now, 71-year-old Kovind is a Dalit leader from Kanpur. He was previously elected to the Rajya Sabha from Uttar Pradesh. Kovind used to practice as a Supreme Court lawyer. Here's what BJP President Amit Shah had to say after the meeting. काफी समय से सभी दलों से चर्चा विचार चालू किया था और जिस प्रकार से फीडबैक मिले और समाज जीवन के भी कई हिस्सों से चर्चा करने के बाद एक लंबी सूची का विचार आज भारतीय जनता पार्टी के
पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ और अंत में राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। मैं अपना सम्मान प्रकट करने के लिए उनसे मिला हूं और जो बात होती है तो जो कुछ भी बिहार का सब कुछ ठीक ढंग से काम हुआ है, इन्हीं सब चीजों के बारे में देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर पूछना अभी मुनासिब नहीं। हमारी लालू जी से भी बातचीत हुई है, मैडम सोनिया जी का भी फोन आया था। मैंने अपनी जो फीलिंग है उससे अवगत भी कराया है, लेकिन इन सब चीजों पर आगे बातचीत होगी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। I'll tell you, at least finally BJP has come up with a name, and though we know the name, we would have to examine lot many things, a background, propensities, inclination. अब अभी तो हम लोगों की भी बैठक होगी, सारे अपोजिशन की बैठक होगी और जो उनकी तरफ से नाम अनाउंस हुआ उस पर, उसके बाद हम लोग भी बैठ के इस पर विचार करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। And that's a wrap on the news here on Mirror Now. Stay with us for more news and updates.